हमारी दादियाँ सबसे न्यारी है, सबसे ऊंचे हैं और सबसे परे हैं। निस्वार्थ रूप से 82 इयर्स से समाज की सेवा कर रहे हैं। हजारों लाखों आत्माओं को उन्होंने ईश्वरीय संदेश दिया, जीवन बनाया, जीवन संवारा। तो निस्वार्थ रूप से वो करते आए हैं और करते रहेंगे, और हम सभी उस कारवां में सम्मिलित है। इसलिए कहते हैं बूंद बूंद से सागर होता है। तो सभी उनसे इंस्पिरेशन लेकर के, प्रेरणा लेकर के हम भी अपना जीवन इतना श्रेष्ठ, इतना ऊंच बनाए। यही प्रेरणा हम सभी यहाँ से लेके जाएं। अभी मैं निवेदन करने जा रही हूँ आदरणीय राजयोगिनी चंद्रू बहन जी से, जो अमेरिका से यहाँ आए हुए हैं। पिछले 55 इयर्स से इस संस्था के साथ जुड़ करके राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं और पिछले 40 सालों से अमेरिका में उपस्थित होकर के अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वेस्ट कोस्ट में जो भी हमारे सेंटर्स है, आप उसके रीजनल डायरेक्टर है। त्यागी तपस्वी आत्मा है। ऐसी महान आत्मा से मैं निवेदन करने जा रही हूँ, गॉडली मैसेज, ईश्वरीय मैसेज हम सभी के समक्ष रखे। आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी चंद्रू बहन जी। ओम शांति। Respected, most beloved Dadi Janki ji, one who is going to be with us soon, all the distinguished guests, and all you brothers and sisters, lots of greetings and good wishes. Suman just asked me how long I am with Brahma Kumaris. As long as I remember and became aware of myself, I'm with Brahma Kumaris. I'm with Baba. Many years ago, a little girl in Mumbai walked in a room full with white clothes people sitting on the floor. But before I see them, I saw very attractive, very loving a man sitting on a gadi. I just looked and looked and looked. And that moment changed everything. Immediately, I said in my mind, this is my father. I did not know who he was. I didn't meet any Brahma Kumaris before. I just went along with my mother. But my destiny, 13 years old girl, I don't know what they think right now, but in those days, I had that awareness that this is my father. And I looked around in all the white clothes, sisters sitting on the floor, and I thought I want to become one of them.
I did not know also who they were, what they're doing, what it will take to become like one of them, but that's my destiny. And from then onwards, here I am with you. Many years ago, we skipped this long story. Many years ago, Baba, Brahma Baba, gave blessings to me and my mother that Baba will send this Kumari in the world and she will glorify God's name. That time, Brahma Kumaris weren't outside of India. We didn't have any center. And Baba had a vision, unlimited vision for me. So that blessings, that vision came true. In the last 40 years, I am in USA and many countries met, related. Many people ask that, what is the difference? Why do you like there in a foreign country? What do you do there? I see that the foreign country, especially USA, gave me opportunity to teachings that Brahma Kumari taught me to use in a practical life. We just heard that we are children of one God. We are one family. But if you are in a one small city, you speak Gujarati, you eat Gujarati food, you with Gujarati sisters, stay, do service, seva, give talks, but then you think you are a world server. It is just in your head that you are a world server. But when you are really thrown into the ocean and try to learn, try to be, not only swim but make others swim, accept everyone. You are my family, you are my brothers and sisters, regardless of who they are, caste, color, creed, religion, culture, language, country. I lived with all kinds of people, English, French, Spanish, Filipino, Japanese, everybody I lived with. Not 1 or 2 days, but many, many years. And allowing me to accept what Baba taught us, that this is a one big universal family. And you embrace, you don't see the differences. All the religions that I got a chance, I never been to church before in India. We had a church right across our home in Mumbai, never went inside. First time I went inside the church in America doing interfaith work. People from all over religions, all over the world come together and talk about one family. And you know you are not only one doing this, but every religion trying to do something good in the world. Alone you cannot do, but you are all together can change the world, make a difference in the world. It is very important that everybody has
same fundamentals. You believe in peace? Yes, we do believe in peace, Christian says. Then you ask in a Muslim, do you believe in love? Yes, we do believe in love. You ask Jewish, you believe in a brotherhood? Yes, we do. Then what's the difference? Why we are fighting? Why we have a differences? So differences of practice. Relating in a different way, but underneath, all the religions, spirituality, and fundamental is same. So no need to. So lots of work we have done in America with different religions and changing the minds of people, bringing people together, understanding that yes, we are one family. We are what Baba says, I am a universal father. I am not just Hindu's father, Muslim's father, Christian's father. I am father of all souls. And really in a practical, you get to know how people are. So this is very important for all of us at this time, the critical time, the worst time in a cycle that we going through. Everywhere trouble, everywhere natural calamities, all the people in a verge of big war and everything. And you see from your eyes that what is happening. The two scenes that I saw in the beginning of this year is one is near San Francisco, overnight, one city, not one house or two houses, but entire city burned to ash overnight. People hardly had a time to run, and the big people, big mansions, rich people area, everything, nothing left, just ashes. Hospitals, schools, churches, everything, malls, cars destroyed. That's not worse. The worst part in Los Angeles, the mudslide. Can you imagine that the water falls from the mountain and brings the mud with it, and big boulders fall into your home and you are buried under? If you drown in water, you can be rescued. But if you are buried under the mud and house is disappeared, the living graves it became. So time like this, I don't want to scare you, happens so much that the Baba saw the vision 80 years ago. That time when we heard, I felt it was drama and seeing the entertainment. But when you see in a reality, it's not entertainment. So how to live, how to survive that, how to help others, it is what we learn here. The meditation, Raj Yoga practice, being a soul, children of one father, and come together. That's only way to survive. When Hillary Clinton lost her election, what she did to overcome, she was so frustrated, she meditated and did pranayama to overcome her loss. President Trump's daughter meditates, Oprah Winfrey. So America is meditating now. It's awakening time for everybody, and when America wakes up, even last, whole world follows. So this is about time
that we have to wake up. Most of you are woken anyway. You are up here in this Madhuban, Shantivan place, and so I am sure you are enjoying, taking most benefit here in this atmosphere, in this environment, the purity, the peace and togetherness, and may you carry with you back home and use in a practical life and share with others. Om Shanti. Thank you. थैंक यू वेरी मच चंद्रुबेन। वर्तमान समय समाज के कंडीशंस देखते हैं तो हर कोई दुखी और अशांत है, चाहे वो भारत में चाहे वो विदेश में। पिछले हफ्ते ही सभी ने ये न्यूज़ सुना होगा, फ्लोरिडा में एक स्कूल में एक बच्चे ने गन पॉइंट पर 18 लोगों को मारा। तो ऐसे 2 इंसिडेंट्स लगातार 2-3 दिन में फ्लोरिडा में हुआ। तो चाहे वो बच्चा है चाहे वो बुज़ुर्ग है, कुछ न कुछ तनाव के प्रभाव में आने के कारण से ऐसे कर्म कर रहे हैं। तो हम सभी केवल न्यूज़ ना सुने, न्यूज़ ना देखें, लेकिन उसके साथ साथ हम सभी को ये शिक्षा दिया जाता है, ये समझ दी जाती है कि हम सभी मेडिटेशन के द्वारा, अपने मन की शक्ति के द्वारा शांति के प्रकंपन संसार में फैलाए, अशांत आत्माओं को शांति का दान दे, शांति प्रदान करे। तो ऐसे जब हम विश्व के लिए ये शांति का दान देते हैं तो ज़रूर हर आत्मा तक वो पहुंचता है, ज़रूर हम इस संसार को बेहतर बनाने में योगदान दे सकते हैं। अभी मैं निवेदन करने जा रही हूँ, वराचा सूरत से आए हुए बहुत सुंदर एक ग्रुप है, गरबा डांस प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ। वराचा सूरत से। हे धन गन तो मोर लो केनी परदेसी छेड़े हमारे बालम जी तमे खरो कराव्यो में काड़ो कान गरबे घूमे भूली भान गोरी गोरी राधा निकालो कान गरबे घूमे भूली भान।
राधा निकालो घर में घूमे भूली गोरी गोरी राधा निकालो घर में घूमे भूली बहुत बहुत धन्यवाद इस गरबा ग्रुप का। मृत्युंजय भाई जी से निवेदन करती हूँ इस ग्रुप का सम्मान करें। और साथ साथ मैं निवेदन करने जा रही हूँ हॉनरेबल श्री ओटाराम देवासी जी, राजस्थान गवर्नमेंट के गोपालन इसके मिनिस्टर है, मंत्री हमारे बीच में है और घर के ही है, हम कहते हैं मेहमान नहीं है, होस्ट है हमारे साथ। तो आदरणीय हॉनरेबल श्री ओटाराम देवासी जी। ओम शांति। आज के इस कार्यक्रम में जिस तरह से ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, तहे दिल से मैं दादी जानकी जी और इस पूरे फेस्टिवल कार्यक्रम में हमारे बीच विराजमान सभी मंचासीन, जिस आध्यात्मिक भूमि ऐसे राजस्थान में माउंट आबू और विशेष तौर से ब्रह्मा कुमारी में एक अलग तरह की जो आध्यात्मिक जीवन जीने की जो कला है, उसको लेकर के एक संसार के अंदर पहले भी मैं दादी जानकी जी को कि जिस तरह से अपने स्वच्छ भारत का अभियान के अंदर सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत में हमारे हिंदुस्तान के एम्बेसडर दादी जानकी जी को नियुक्त किया। इसके लिए हिंदुस्तान में एक अलग पहचान और हमारे ब्रह्मा कुमारी की पहले से अलग पहचान है पूरे विश्व के अंदर। और मैं जिस क्षेत्र से हूं, ये सिरोही जिला पूरे वर्ल्ड में जहां भी ब्रह्मा कुमारी का नाम आता है तो सबसे पहले
एक आध्यात्मिक जीवन की तरफ बढ़ने का काम आता है। और आज जिस फेस्टिवल में पूरे हिंदुस्तान से कोने कोने से, पूरे वर्ल्ड से, जिस कोने कोने से हमारे बीच में सब पधारे हैं, तहे दिल से मैं उन सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में, जब हमारे यहाँ राजस्थान में गायों के लिए जो बात आती है, तो जिस डिपार्टमेंट का मैं मिनिस्टर हूं, आज जिस तरह से अपने पूरे विश्व के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर गाय पर जब चर्चा होती है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं सम्मानीय देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने भी, जो हम राजस्थान में काम कर रहे हैं, कि यहां की जनसंख्या जिस तरह से करीब 7 करोड़ के लगभग है और पूरे राजस्थान का गोवंश 1 करोड़ 33 लाख है। जब बात चली तो हमने कहा इसके लिए अलग से एक फंड की व्यवस्था हो और पूरे राजस्थान नहीं, पूरे हिंदुस्तान में गायों की सेवा के लिए लोग आगे आए और अपन सभी मिलकर आज दिन तक गाय के मिल्क के अंदर एक अलग तरह की व्यवस्था है कि जब गाय के अंदर सूर्य केतु नाड़ी होती है और सूर्य की किरणों से गाय के दूध के अंदर स्वर्ण भस्म मिलती है, यह हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। आज दिन तक हिंदुस्तान में या वर्ल्ड में कहीं नहीं सुना होगा कि गाय के दूध से हार्ट अटैक या डायबिटीज या शुगर, यह गाय के दूध में बहुत बड़ी विशेषता है कि अगर दादी जानकी जी के इस फेस्टिवल पर आप सबके बीच में अपन सभी एक संकल्प ले लें कि आने वाले समय में इस हिंदुस्तान में गाय को कैसे बचाया जाए, यह अगर अपन सभी संकल्प लें तो मैं समझता हूं हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होगी। क्योंकि आने वाले समय में गाय जिस तरह से आज की तारीख में सभी गौशालाओं में, परंतु मैं समझता हूं कि गाय गौशाला गाय का घर नहीं है, गाय का घर है किसान का घर। जब आने वाले समय में एक किसान अपने मन पे धार लेगा कि गाय का घर किसान का घर है, तो खुद किसान अपने ऊपर एक ले लेगा। तो मैं समझता हूं पूरे हिंदुस्तान में एक किसान जब गाय के प्रति समर्पित हो जाएगा तो आने वाले समय में हमारे लिए बहुत बड़ी उपयोगिता होगी। और आपके बीच में मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि जिन्होंने इस गाय के लिए अलग से फंड बनाकर, अलग से एक डिपार्टमेंट बनाकर गायों की सेवा के लिए जो काम दिया है। मैं भी भगवान कृष्ण का ग्वाला हूं और आप जिस तरह से मुझे देख रहे हैं, भगवान कृष्ण ने भी गाय की सेवा की थी और एक ग्वाले के रूप में जिस तरह से मुझे भी ये जो डिपार्टमेंट दिया गया है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी एक आध्यात्मिक जीवन के लिए जिस तरह से जो काम कर रही है, तो मेरा एक छोटा सा संकल्प है कि जिस तरह से अपने आने वाले हिंदुस्तान में स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ कार्यक्रम और गाय को बचाओ एक कार्यक्रम, अगर अपन इसको हाथ में लेंगे तो अपना हिंदुस्तान एक आध्यात्मिक जीवन की तरह आगे बढ़ेगा और बढ़कर उसमें अपन सभी मिलकर काम करेंगे।
आपके बीच में आने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं यहाँ ब्रह्मा कुमारी के इस विशेष तौर से सिरोही जिले में स्वच्छ भारत के अंदर ये एक जो काम करते हैं उनके लिए भी इनको मैं खूब खूब बधाई और धन्यवाद दूंगा पूरी संस्था को कि आज की तारीख में पूरे सिरोही जिले में जब कोई छोटा सा काम आता है तो सबसे पहले आगे आकर इस काम को हाथ में लेते हैं। और मैं विशेष तौर से आपके इस कार्यक्रम में आने का मुझे सौभाग्य मिला क्योंकि मैं तो इसी जिले से हूं और बीच बीच में हर कार्यक्रम में आता रहता हूं। तब आपके बीच में इस कार्यक्रम में आने का मुझे सौभाग्य मिला। तहे दिल से आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और ओम शांति बोल के अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद ओटोराम जी का। आप हमारे बीच आए और आप सभी का स्वागत आपने किया। अभी मैं निवेदन करने जा रही हूँ मिस्टर राजेश बादल जी जो न्यू दिल्ली से यहाँ पधारे हुए हैं। ही इज़ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ राज्यसभा टीवी। आप मीडिया क्षेत्र में पिछले 41 इयर्स से सेवारत है। प्रिंट मीडिया, टीवी मीडिया, रेडियो, वेब मीडिया सभी में आपने काम किया है, बहुत अनुभवी है और 10-12 नए चैनल्स आपने शुरू कराया है। आज तक चैनल में 10 साल तक आपने सेवा दी संवादक के रूप में और RSTV राज्यसभा टीवी का आप ये चैनल आपने शुरू कराया है और 100 से भी ज़्यादा फिल्म और डॉक्यूमेंट्रीज़ में आपने काम किया है। मोस्ट रेस्पेक्टेड राजेश बादल जी। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी परिवार के भाइयों और बहनों, इस परिवार की और हम सब की मार्गदर्शक और प्रेरणा पुंज दादी जानकी जी, जिनका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा था, है और रहेगा, और आप सब यहाँ मौजूद देश और दुनिया के अनेक देशों से आए मेहमान, इस परिवार के सदस्य और अतिथिगण। सुबह के सत्र में शिवानी जी ने जिस तरह से इस परिवार की अवधारणा को साकार हम सब लोगों के सामने किया, आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को रेखांकित किया, उसके बाद बहुत कुछ बोलने को नहीं रह जाता। लेकिन मेरी मान्यता यह है कि जब हम कभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के विषयों पर चिंता करते हैं, मंथन करते हैं, कोई राय बनाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा लगता है कि वास्तव में कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक नहीं है। जो शिवानी जी ने आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को रेखांकित किया, मुझे एक कुछ लाइनें संस्थान के लिए कहने की अनुमति दीजिए। मिलते हैं यहाँ ज्ञान और योग, मिलते हैं यहाँ ज्ञान और योग, इस अदा के साथ जैसे हो कोई आत्मा परमात्मा के साथ, जैसे हो कोई आत्मा परमात्मा के साथ। अपने हुनर से इस रिश्ते को वो रूप दे दिया दुनिया में, जिसने शांति का झरना बहा दिया। मैं बात कह रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ चिंता में डालने वाली है। एक जमाने में ये कहा जाता था
कि जमीन, पानी और हवा, ये तीन ऐसे हैं जिनका कोई कीमत नहीं, और आज ये तीन बड़े अनमोल हैं। ठीक वैसे ही जैसे अरसे तक दुनिया में भारत ने सुख, खुशी जिसको कहें, या सुख, शांति और सेहत का जो संदेश दिया, वर्षों तक हम इस दुनिया के आध्यात्मिक गुरु बने रहे, लेकिन कहीं ना कहीं आज सारा विश्व जिस रफ्तार से आगे जा रहा है, भारत जिस रफ्तार से आगे जा रहा है, उसमें जिंदगी की रफ्तार में, भागदौड़ में हमारी खुशी, हमारी शांति और हमारी सेहत के लिए जो प्राथमिकताएं हैं वो कहीं हाशिए पर चली गई हैं। शांति की परिभाषा बदल गई है, खुशी की परिभाषा बदल गई है, और सेहत पर हमारी आज की जीवन शैली ने बहुत गंभीर असर डाला है। हम सबके सामने, केवल हमारी पीढ़ी ही नहीं, अगली पीढ़ी के लिए भी ये एक गंभीर चुनौती पेश की है। तो इस हालत में ब्रह्मा कुमारी परिवार ने अगर ये बीड़ा उठाया है, ये संकल्प लिया है, और 150 से ज्यादा देशों में अपने इस आंदोलन को, जी, ये एक सामाजिक आंदोलन, ऐसा आंदोलन है जिसमें किसी सत्ता और हुकूमत का साथ नहीं चाहिए। इसमें सिर्फ हर इंसान को अपने दिल का साथ चाहिए, अपने अंदर की आवाज का साथ चाहिए, तब हम जाकर के अपने इन 3 लक्ष्यों को जो यहां प्रदर्शित हैं हासिल कर सकते हैं। एक मीडिया कर्मी के नाते मैं कह सकता हूं कि एक जमाना था जब लोग बहुत पढ़ते थे, पढ़ने की आदत थी लोगों में, लेकिन अभी जो वर्तमान दौर है इसमें पढ़ने की आदत कहीं गुम हो रही है। ऐसी सूरत में खास तौर पर मैं इस मंच के माध्यम से और ब्रह्मा कुमारी परिवार से भी मैं ये आह्वान करता हूं, अपील करता हूं, इस बड़े यज्ञ में हम सब अपनी अपनी आहुति दें, इसकी भी अपील करता हूं कि नई पीढ़ी के लिए कुछ चीज़ें हमारे ज़रिए, हमारे माध्यम से इस संदर्भ में ज़रूर आगे जाना चाहिए। बहुत पहले हमारे यहाँ एक वाचक परंपरा का जिक्र आता है। इस देश में प्राचीन काल में वाचक परंपरा के ज़रिए ज्ञान की गंगा बहाई जाती थी। अब अगर आज की पीढ़ी नहीं पढ़ना चाहती है, हमारे पूर्वजों के बताए रास्ते पर उन ग्रंथों को नहीं उसके सामने हासिल हैं, पढ़ाई का मतलब सिर्फ प्रोफेशनल स्टडीज रह गया है, पाठ्यक्रमों की पढ़ाई रह गई है, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है। मैं अगर अपने को टीवी मीडिया के तौर पे मानूं तो टेलीविज़न के ज़रिए, क्योंकि देखा हुआ ज़्यादा असर करता है, सुना हुआ ज़्यादा असर करता है, पढ़ा हुआ ज़्यादा असर करता है, लेकिन देखा हुआ तो सबसे ज़्यादा असर करता है। तो ऐसी सूरत में हम लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है कि एक बार फिर से इस अनमोल खजाने को वापस लोगों के सामने लाएं, ज्ञान की गंगा बहाएं, ताकि शांति की सही परिभाषा हमारे सामने आए। खुशी का जो आधार बदलता जा रहा है भौतिकवादी समाज में, वो हम वापस खुशी की वास्तविक परिभाषा पहचाने। आदरणीय दादी जी हमारे बीच में हैं और मैं चाहता हूं कि आप सब खड़े होकर उनका अभिनंदन करें।
बहनों और भाइयों, मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अपनी इस बातचीत को विराम देना चाहता हूँ इस दो पंक्तियों के साथ इस परिवार के लिए, हम सब के लिए, कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। धन्यवाद, आभार। बहुत धन्यवाद राजेश जी का। हमारे बीच परमादरणीय दादी जी उपस्थित है। अभी मैं नेक्स्ट निवेदन करने जा रही हूँ मिस कैरोलिना गोस्वामी। I would like to invite Carolina Goswami to express her feelings today. Carolina Goswami is the founder of India in Details. She is from Poland and is a production engineer. She is married to Anurag Goswami. She has been talking to the world about India and Indians through YouTube, Facebook, and other social media platforms. India in Details has a global outreach with nearly 1 million active followers on social media. Most respected, Carolina Goswami. Deserts, rainforests, islands, volcanoes, saltpits. India is greatly diversified. I firmly believe that as a tourist destination, India is still very underestimated. But thanks to the emergence of social media and to India's rapidly growing economy, the future is indeed very promising. By 2027, the sector's total contribution to GDP is expected to grow to $424 billion, and by 2030, India is expected to be ranked among the top 5 business travel markets. Well, it all sounds pretty favorable, but there is something that is equally important, and that is safety and security. Here is a list of top 10 source countries where India gets its foreign tourists from. It is visible that India gets a lot of visitors from the US and the UK. Now, let's check how safe India is for the citizens of these two countries. Here is a list of the foreign countries in which the most American civilians were killed between October 2009 and June 2016. India is nowhere in the list. And here is a list of the countries in which the highest number of British people were killed between 2012 and August 2015. Again, India is nowhere in the list. Through my movies, I have been trying to help those who are misinformed about India. I have been neutralizing the false news by highlighting the truth and by bringing out lesser-known facts. I live in India, and I have already brought a lot of tourists to my new home. There is no surprise that almost all of them want to keep coming back. My journey in India is never going to stop, and through my movies, I will continue to share my stories with you. Tourism is a significant source of foreign exchange earnings, and up to 1/10 of global GDP and jobs are tourism-related. Tourism has great capacity to bring human prosperity. It creates opportunities for a positive cultural exchange, and it strengthens people-to-people relations. It helps in poverty eradication, and it brings socio-economic benefits for those at the bottom of the pyramid. Directly or indirectly, travel and tourism brings empowerment to all sections of the society. It creates large-scale employment by increasing the demand for unskilled, semi-skilled, and skilled workers. Every tourist who comes to India presents multiple possibilities which are visible and invisible. There are many who come as tourists but end up becoming partners in business and trade. Those who have a good time often come back and revisit. If they can't revisit, they often end up sending others.
India has a beautiful national tourism policy that wants to ensure that the tourists to India get physically invigorated, mentally rejuvenated, culturally enriched, spiritually elevated, and feel India from within. See you again. Namaskar and Pranam. I am very happy to have a chance to say a few words to you. So what is India? For many people, India is a mystery. For many people, India is a massive consumer market, and for many, it is just a country. But for me, India is a divine feeling. This is the epicenter of our planet's spirituality. This is the ancient land in which the soul of the Mother Earth resides. And just like one cannot understand the universe and its mystery without having fine-tuned senses, you also cannot understand India if your senses are not fine-tuned. In my understanding, apart from yoga, there is no other available way to understand our connection with the cosmic energy. This is my first visit to Brahma Kumari, and the most important thing that I see is that they focus on serving humanity. For me, the way of life is yoga. And by doing yoga correctly, our senses get fine-tuned. And by having our fine-tuned senses, we can understand the universe better, and we can understand Mother India better. Namaskar and Pranam. Thank you so much, Sister Carolina.